Drugs. That what actually drugs implies, what it means when we say drugs, 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 and how these drugs influence our body. So as far as drug is concerned, a drug is any substance, anything that when absorbed into the body of a living organism alters normal bodily function. Drugs are chemicals that change the way a person's body works by altering emotions and thoughts. So the drugs alter our emotions and our thoughts. Even as far as our physical strength and capability is concerned, drugs, as far as drugs are concerned, they play a very vital role. Particularly those who are drug addicts. They cannot even walk, they can do nothing until and unless they don't take those drugs to which they are addicted to. So this is very important to be understood. Drugs have been part of our culture since the middle of last century. Actually, we are, as far as India is concerned, Indian subcontinent is concerned, we are caught in between golden crescent and golden triangle. The geographical areas which are the epicenters of drugs cultivation, manufacturing, and then trafficking it to different parts of the world. So this you have to understand through Google and YouTube. Then basically from which countries the drugs are cultivated, where does they originate, and why they are spread in the length and breadth of the world to different countries. So this information you can get from, and there is about every drug minute information is available on Google, and to different browsing apps that are available with us. Very easily you can consult them in today's age of in today's digital age. Very easily you can have each bit of information about drugs online available. So the only thing is that you have to aware yourself about drugs. The next slide. What is drug abuse? Drug abuse may be defined as the habitual use of drugs not needed for therapeutic purposes, solely to alter one's mood, affect of state of consciousness, or to affect the body or function unnecessarily. Continued use of drugs can lead to drug dependence, a state of physical and mental dependence. Commonly abused drugs: marijuana, cocaine, heroin, alcohol. Sometimes sedatives, coffee and cigarettes can be used to harmful excess. Next. ये आपको समझ में आता है? देखो ड्रग्स जब आप लेते हैं, देखो ड्रग्स से होता क्या है, कुछ लोग जो है पर्टिकुलरली जो यूथ है, जब आप मूवीज देखते हो, जब आप आपस में फ्रेंड्स को देखते हो, आज का जो कल्चर है, आप देखते हो कि मूवीज में कोई सिगरेट पीता है तो बड़े स्टाइल से सिगरेट पीता है, दिया मारता है, मूछें रखता है, ड्रिंक करता है, या उसमें ड्रग्स भी लेता है। जहां तक अल्कोहल जो है और सिगरेट का जो इश्यू है, लोग इसको अपने वो बहादुरी के साथ कि मैं जी माचो मैन हूं, मैं जी मसल मैन हूं, मैं इससे थोड़ा देर बेफर दिखूंगा, आज के जमाने के हिसाब से जो नई जो हमारे मूवीज जिस तरह के कल्चर को प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि ये हम लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो जो है वो बहादुरी वो चीज आ जाएगी। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जैसे ओपियम है, कोकीन है, हीरोइन है, ये ऐसे ड्रग्स हैं, अगर आपने एक बार इंजेक्ट किया बॉडी में, जब तक आपको दोबारा वो नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी जो है पूरा उसमें शेयरिंग होती है, आप पूरा कोलैप्स कर जाते हो, आपका पूरा बॉडी का जो वेट है वो आप लॉस करते हो। और अगर आपको वही चीज नहीं मिली, कुछ देर तक आपने उसको यूज किया, तो आपको फिर अपने आप को या तो आप सुसाइड करते हो या फिर आप दूसरे को मारते हो, या डिफरेंट क्राइम्स में आप जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी को आप मर्डर करते हो, होमिसाइड में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, रेप केसेस में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, थेफ्ट केसेस में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। और इवन कुछ ऐसे भी इंस्टांसेस सामने आए जहां पे बच्चे ने अपने फादर की जान ले ली, अपने ब्रदर की जान ले ली, अपने माँ का गला काट दिया।
वो इसलिए क्योंकि जब उसको उस चीज की डिमांड होती है, अगर उसको बंदे को जो ड्रग एडिक्ट है उसको वो चीज मिली नहीं तो वो जो है अपनी जान ले लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, अपनी जो उनकी नेचुरल थोड़ा बहुत वीकनेस है उसको बढ़ाने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा स्टेज आ जाती है क्योंकि वो साइकोलॉजिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोगों में अंदर से डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों में जो डर होता है कुदरती तौर पे नेचुरली उनमें डर डिप्रेशन आ जाता है, उस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं। जैसे कभी फ्रस्ट्रेशन आ गया, कभी एग्जाम का प्रेशर आ गया, कभी कंपटीशन का प्रेशर आ गया, तो वो डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो मूवी कर लेते हैं, आप मूवीज में भी देखते हो, आप सोचते हो यार मैं भी सुट्टा लगा दूंगा क्या होता है देखते हैं, या आप थोड़ा बहुत पी लेता हूं, कल्चर इस तरह का बन जाता है। या शाम को कुछ ऐसे फिर डेंजरस टाइप के ड्रग्स है, आप देखोगे मेरा फ्रेंड लेकिन बिल्कुल हट्टा कट्टा है, अच्छी फैमिली से, अगर ये इंजेक्ट करता है तो मुझे इंजेक्ट करने में क्या है, मैं भी कर लेता हूं। लेकिन जिनमें जो लोग इसमें एक बार एडिक्शन में आ जाते हैं, अगर आप उनके हालात देखोगे तो उनके साथ क्या होता है फिर जब तक उनकी डेथ नहीं होती है, अपने आप को खत्म नहीं करते हैं, दूसरे अपनी फैमिली को भी, और इसमें स्टिग्मा भी थोड़ा बहुत होता है समाज में, फिर वो लोग बाहर भी नहीं आते हैं, अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट प्रेस्टीज वगैरह, तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। यानी ड्रग्स का जो सीरियस किस्म के ड्रग्स है उसमें जो एंड है वो सिर्फ और सिर्फ डेथ पे ही जो है वो बंदा खत्म हो जाता है, उसका समाज, उसका जो फैमिली है वो सारी फैमिली खत्म हो जाती है, और इसमें वापसी का बहुत माइन्यूट चांसेस बनते हैं। जिसलिए आज जो है हम हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग अवेयरनेस को जो है वो अवेयर, लोगों को अवेयर किया जाए, इसको फैलाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं, जो यूथ है, जो इस देश का फ्यूचर है, वो अपने आप को इन चीजों से बचाए। Any agent that alters the biochemical or physiological process of tissues or organism with the potential to prevent or cure diseases or enhance physical and mental well-being। अभी आप बिल्कुल डिप्रेस फील करते हो, बिल्कुल वीक जैसे फील करते हो, तो कुछ ऐसे ड्रग्स है जब आप उनको लोगे तो बिल्कुल आप में एलर्जी आएगी। अगर आप बिल्कुल परेशान थे, कुछ ऐसे ड्रग्स है जब आप लोगे आप हंसना शुरू करोगे, आप कॉन्फिडेंट शुरू करोगे। अगर आप अंदर किसी कमरे में बैठे हुए थे, आप ड्रग्स लोगे, आप बाहर आओगे, अभी मुझसे खड़ी कर दोगे, ठीक है, तो लोगों के सामने आओगे, समाज में आओगे, बाहर जाओगे, ऐसे भी ड्रग्स हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सारा नॉलेज जो है, जिनके इफेक्ट जो है वो आपको सारा ऑनलाइन मिलेगा। आपको सिर्फ गूगल करना है, गूगल पे जाना है, डिफरेंट सर्च इंजन हमारे पास है, हर तरह की हर चीज, हर ड्रग के बारे में अवेयरनेस है, अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। आगे चलो। Psychoactive drugs, chemical substance that changes brain function and results in alteration in perception, mood or consciousness। आपका जो सोच है, थिंकिंग है, अगर पहले नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव आ जाती है, या आपकी थिंकिंग ही प्रोसेस पूरा चेंज हो जाता है। इस किस्म के ड्रग्स है, इनहेलेंट्स है, स्टिमुलाइजर्स है। आपका मूड डिपेंड करता है ड्रग पे, इतना आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो, इतना डिपेंडेंट कि आपका मूड तक नहीं बनता, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते जब तक आप ड्रग्स नहीं लोगे। जैसे अगर नाइट को आपने सुबह तक स्टडीज करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी 2-3 मग पीते हैं सुबह तक, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है सुबह तक। कुछ ऐसी चीजें वीक बहुत आप फील करते हो, कुछ ऐसे ड्रग्स है वो आप लोगे तो आपको बड़ा जो है कॉन्फिडेंस आप में आएगा, और वो चीजें आप करोगे जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते हो। लेकिन वो आप अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी आप में वो खत्म हो जाएगी, आपको तरह तरह के सपने जैसे ख्यालों में चले जाओगे, टाइम निकल जाएगा, 12 घंटे निकल जाएंगे, 24 घंटे, आप 24 आवर्स वगैरह जो है वो आपका टाइम निकल जाएगा, और आप रिलैक्स्ड फील करोगे। जो बॉडी पेन है, जो मेंटल एक्सर्शन वगैरह है, उससे आप रिलैक्स्ड फील करोगे। इस तरह के स्टिमुलाइजर्स, ड्रग्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है। बार्बिचुरेट्स, सेकोनल, मेनबुटल, रिलैक्सेशन, एंजाइटी रिडक्शन, स्लीप, हेरोइन, मॉर्फिन, परकोडेन, डेमोरल, ओपियम, जो कंट्रोल करते हैं पेन वगैरह को, और यूफोरिया वगैरह में आपको ख्याली दुनिया में, ड्रीम्स वगैरह में ले जाते हैं। तो तरह तरह के जो ड्रग्स है आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर एंजाइटी उसको खत्म करते हैं, बॉडी पेन, जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो फिजिकल लेवल में आपको हेल्प करते हैं, फिजिकली आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि हेरोइन, आजकल बहुत ज्यादा, कोकीन वगैरह जो है बहुत ज्यादा लोग जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है वो लेते हैं। हमारे पास जेलों में पड़े हैं, पिछले 1-2 महीने में हमने तकरीबन 7-8 लोगों को पकड़ा यहाँ पे हेरोइन के साथ।
आप यकीन मानो, जब हम उनको बंद करते हैं, हवालात में करते हैं, जेल में बंद करते हैं, वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्कुल सुकर जाते हैं, वो नीचे से ऊपर भी नहीं उठ पाते हैं, इतनी बुरी हालत उनकी होती है जो ड्रग्स में एडिक्टेड है। और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो बताते भी नहीं है, प्रेस्टीज को लेके, इज्जत को लेके कि भाई हमारी फैमिली का वो होगा। ऐसा नहीं करना है, वो बोलना है हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो सकता है, तो आप लोगों को सामने आके वो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना है कि हमारा बच्चा जो है एडिक्ट है। हम कोशिश करते हैं कि जो एडिक्ट है उनका जो रिहेबिलिटेशन है, और जो पेडलर्स है उनसे हमें पता चले कि ये कहां से आता है। पेडलर्स को जो है हम कोशिश करते हैं कि उनको सलाखों के पीछे बंद करें। आपने पिछले 2-3 महीनों में देखा होगा कि कितने लोगों को हमने पकड़ा और कितना ज्यादा क्वांटिटी में हमने ड्रग्स पकड़ा, और वो सारे के सारे लोग जो है पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से सब के सब जेल में, हवालात में वो बंद है। उन्हें साख जो लगाए होते हैं, जब और बच्चे 5-10 दिन, हफ्ता तक धोते नहीं है पैरों को, उसमें जब स्मेल आती है तो उसको फिर निचोड़ते हैं पानी डाल के, वो जो उसमें पानी निकलता है वो पीते हैं। मतलब किस किस किस्म का ड्रग्स है। नेल पॉलिश, वेजलीन और जो चेरी पॉलिश वगैरह है, इन सभी चीजों से बचना। ये नहीं देखना कि मेरा फ्रेंड है, वो है, ये है। कुछ दवाई हमारे पास है, कुछ आई ड्रॉप्स हमारे पास है, कुछ पेन किलर्स हैं, जो हम जब कभी दर्द होता है, बॉडी एक होता है, तो हम 500 mg लेते हैं, 250 mg लेते हैं। तो जिसको एडिक्शन हो जाती है पूरा पत्ता ले जाता है, पूरा पत्ता लेता है, फिर वो 24 घंटे बिल्कुल सो जाता है, किसी को पता नहीं होता है, और कभी कभी उसकी डेथ भी होती है। कुछ आई ड्रॉप्स हैं, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। आई ड्रॉप्स जब भी दर्द, तब तक वो बंदा सो ही नहीं सकता, आराम कर ही नहीं सकता है, वो रिलैक्स ही नहीं होगा जब तक ना वो आई ड्रॉप्स लेगा। तो ये सारी चीजें जो है, मैं भी माचो में बन जाऊंगा, तो इन चीजों से बचना है। लीगल सब्सटेंस, उसके बाद इलीगल, कोकीन, मोर्फिन, एलएसडी, हेरोइन, कैनबिस वगैरह। ये क्या क्या ड्रग्स है। जैसे नंबर 1 पे कोकीन पाउडर की शक्ल में होगा। अगर आप देखते हो कागज वागज में, पुड़िया में किसी बंदे में रखा है तो उसको पहचानो। 2 नंबर में जो क्रैक कोकीन है, मेथिल फेंडाइट, रिटेलन, एफेरिडाइन, एमडीएमए, मेस्केलिन। ये 6 नंबर पे जो है कैक्टस, जो कैक्टस प्लांट होता है ना, उसको भी लोग जो उसका जूस निकाल के वो पी लेते हैं। तो ऐसा ना आप सोचो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, लगातार उसका यूज करो। है, कोकीन है, हशीश है, हेरोइन है, अल्कोहल है। बेसिकली जो ओपियम वगैरह है या हमारे हेरोइन जो है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो है अफगानिस्तान में निकलता है। देखा है, जब आजू बाजू में आप देखते हैं ना वाइल्ड सीड्स, वाइल्ड जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो इस किस्म का जो है मशरूम वहां पे आपको दिखता है। या जो 11 नंबर पे है, या 16 नंबर पे जो है ये कैनिडस, इस तरह की चीजें। या 14 पे जो है टोबैको। ये देखो मशरूम डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक ट्री होता है जो 11 नंबर पे है, एमानिटा, मस्कारिया मशरूम, ये भी एक मशरूम है। जो ट्रीज होते हैं पुराने, उनमें पूरा वो बना होता है जाल जैसा, उसको लोग काट के उसको खाते हैं। मशरूम में, हर मशरूम में तकरीबन जो है वो ड्रग्स का वो कुछ न कुछ क्वांटिटी जो इनहेलेंट या कुछ न कुछ आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, असरअंदाज करता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिससे बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ता है, जो वाइल्ड किस्म के मशरूम होते हैं। वो आपने अपने घर वालों से भी सुना होगा कि भाई फलाने बंदे ने खाया, वाइल्ड बूटी थी, वाइल्ड मशरूम था, वो बाद में नाचने लगा, वो बाद में चिल्लाने लगा, वो बाद में हंसने लगा जोर जोर से, जो जंगली फॉरेस्ट वगैरह में मिलता है। ये दवाई भी बहुत किस्म की दवाई है जिसको लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और इससे उनको नींद आती है, रिलैक्स्ड फील करते हैं ये कुछ देर के लिए। लेकिन जब हैबिचुअल होते हैं तो फिर इन दवाइयों के बगैर वो कुछ भी नहीं करते। फिर वो जब ज्यादा क्वांटिटी में ये लेते हैं, आपका लीवर खत्म हो जाता है, जो आपकी किडनी है वो खत्म हो जाती है, जो आपके जो बाकी नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। में तकरीबन 68 किलोमीटर है, 68.5 किलोमीटर से हमारा एलओसी का स्ट्रेच।
और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि कितना हमने हेरोइन पकड़ा। तो जो हमारा एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, वो हमेशा कोशिश करता है कि वहां से ड्रग्स भेजे, और ड्रग्स के साथ वो पैसे भी बेचते हैं और वेपन भी बेचते हैं, कि ताकि यहाँ का जो फ्यूचर है, यहाँ का जो यूथ है, उनको इस चीज में इन्वॉल्व किया जाए। तो इस चीज पे आपने पूरा नजर रखना, इन चीजों से बचना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि किसी तरह का आपको इसमें फायदा होगा। कहीं आपका फ्रेंड आपको ये गाइड ना करे कि भाई तुम दौड़ नहीं सकते हो, ये ले लोगे तो तुम जो है सबसे आगे दौड़ में निकल जाओगे। तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, ये लोगे तो क्रिकेट खेल पाओगे। तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है तो ये लोगे तो तुम्हारी बॉडी बनेगी। तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, डर रहे हो, तो ये लोगे तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, डर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह की चीजें जो है ना, वो जो एक बार जो इसमें फंस गया, वो ये आपको बताता है कि यार एक बार तुम ले इसे, तुम देखो मजा फिर क्या आता है, लाइफ क्या बनती है। अब आप सोचते हो कि छोटी सी चीज है, थोड़ा मैं चख लेता हूं, लेकिन जिन जिन को एडिक्शन मिली हुई 18 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, 22 ईयर्स के, उनकी आप थोड़ा बहुत हालत देखना। हम बीच में आपको अगर पॉसिबल हुआ प्रिंसिपल साहब के परमिशन से कुछ बच्चों को ले जाएंगे हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में, आपको उनसे मिलाएंगे के साथ। उनको लगता है कि मैं मर जाऊं लेकिन मुझे नहीं मिलना चाहिए। दीवार के साथ अपना सर फोड़ देगा, चाकू उठाएगा, अपने आप को मारेगा। इतना ज्यादा एडिक्शन, मतलब डेथ, और दूसरा कोई उसमें आगे नजर कुछ नहीं आता है। इतना सीरियस है ये जो ड्रग एडिक्शन है अभी का, कोकीन, हेरोइन वगैरह। जिन चीजों से आपने बचना है वो बने। जैसे अभी आप सुबह निकलते हो कॉलेज के लिए, माँ को बोलते हो कि मुझे जो है, फादर पेरेंट्स को बोलते हो कि मुझे आज बड़ी वीकनेस है, टांगों में दर्द है, वो है, ये है, तो कभी आपको कोई पेन किलर वगैरह टैबलेट दे देते हैं। एक दिन लेना, 2 दिन लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपने रूटीन उसका बनाया, या पेरेंट्स को बोला रात को कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं जब सोने जाता हूं, सुबह तक मैं ऐसे रहा, मेरा सर फट जाएगा, वो ये, तो नींद की कोई टैबलेट दे दी। एक दिन लेना ठीक है, 2 दिन लेना ठीक है, लेकिन उसको रूटीन में यूज करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 टैबलेट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 टैबलेट। लाइट ज्यादा देर तक अगर आप मोबाइल को यूज करोगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। यह आपके माइंड को बहुत एक्टिव स्टेट में रखता है। शाम के टाइम में परख लेना, 3-4 घंटा मोबाइल पे लगातार रहना, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। तो इसकी लाइट से, इसका जो डायरेक्ट आपके साथ जो आईज पे इसका इंप्रेशन पड़ता है, इन चीजों से भी बचना है। मोबाइल का यूज करना है, लेकिन सिलेक्टिव इंटेलिजेंट यूज करना है। ये आपको अच्छा भी बना सकता है, तो ये आपको बहुत बुरा भी बना सकता है। जैसे प्रसन्नजीत कौर ने अच्छा यूज किया, तो उसने देखो घर में बैठ के उसने आईएएस का 11th रैंक लिया। और अगर कोई इसका मिसयूज करे तो वो बहुत खराब भी हो सकता है। आप यकीन मानो, अगर आपका एक फ्रेंड ड्रिंक करता होगा ना, वो पार्टीज वार्टीज में जाके आपको ऐसे ऐसे ताने मारेगा, मूवीज को देख के, मैं यार तू भी यार क्या बन, तू तो यार पप्पू है यार, तू ड्रिंक नहीं करता, तू तो पप्पू है, यही बोलेगा ना। हाँ, तो यार लगा ले तो देख मजा क्या आता है लाइफ में, है ना। यार कल एग्जाम है, पढ़ना है यार, तो एक तक लगा रहा, तो देख मजा क्या आता है। इस तरह की, यार ये तो एक बार इंजेक्ट करना, तो दूर से बोलता है उसने बोला, ये एक बार तो इंजेक्ट करना, तो देख मजा क्या है लाइफ में। तो ऐसी जो पीयर जो प्रेशर है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो आपको किस तरह का फ्रेंड सर्कल है, आपको मजबूर करेगा जब तक नहीं आप लोगे। क्योंकि अब हम जो है सबसे ज्यादा क्लोज किसके रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के। तो उनकी जैसी हैबिट्स जो वो चाहेंगे, उसी तरीके से हम भी कोशिश करते हैं वही चीजों को करने के लिए। तो उस चीज से आप लोगों को बचना है। फ्रेंडशिप अपनी जगह, उनको भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। क्योंकि अदरवाइज अगर इसमें जो सीरियस ड्रग्स हैं, हेरोइन, कैनिबस, कोकीन वगैरह, वो मोटिवेट करती है कि स्ट्रेस, अगर आपको टेंशन वेंशन है, कुछ देर के लिए आपको रिलैक्स कर देता है ये चीज जब आप लेते हो। इंक्रीज एनर्जी टू रिलैक्स, थोड़ा ताकत बॉडी को मिलती है कुछ देर के लिए रिलैक्स करने के लिए। पेन अगर थोड़ा बहुत हो उसको खत्म करता है। और जो रियलिटी है, यार मेरे फ्रेंड ने आईएएस किया, मैंने नहीं किया, मैं फेल हो गया, तो 1, 2, 3, 4 दिन के लिए आपको बिल्कुल भुला देगा सब कुछ। यार कोई बात नहीं, तो उसने किया, मैं फेल हो गया, मैं कर नहीं पाया। लेकिन वो फिर उम्र भर के लिए जो है आपका वो एडिक्शन बन जाता है। टू फील मोर सेल्फ एस्टीम, जब आप बिल्कुल खत्म अपने आप को पाते हो कि मैं तो बिल्कुल खत्म हूं, यार मैं कुछ भी नहीं हूं समाज में, फिजिकली किसी भी तरह से, तो उसको पाने के लिए सेल्फ एस्टीम को इज्जत आप ड्रग्स लेते हो।
और लगा दी 2-3 पैग, यार आप कौन बड़ा, आप तो दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूं। फिर उसको ये नजर नहीं आता कोई और बड़ा, उसको ये लगता है कि मैं ही बड़ा हूं। रिक्रिएशन, अपने आप को थोड़ा बहुत खुश रखने के लिए भी हम ड्रग्स लेते हैं। मसल मास, कि मैं इससे थोड़ा बहुत मेरी मसल्स बनेंगे, वो ये ताकत बनाने के लिए ड्रिंक विंक करूंगा, वो ये लूंगा तो शायद इससे कुछ फायदा हो। और बाकी है रिजेक्शन। जब आपका फ्रेंड से आपको लगता है कि ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आप बच्चे याद रखना। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा साइज छोटा है हाइट में, या मैं काले रंग का हूं, ठीक है, या मैं काले रंग का हूं, या मेरी मसल्स नहीं है, ठीक है, तो या मैं जो है पढ़ाई में थोड़ा पीछे हूं, आता नहीं है, तो कुछ लोग अंदर अंदर से ही मरे जाते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद इन चीजों से निकले हम हमें पता है इस चीज का। अपने आप को रिजेक्शन की फीलिंग अपने अंदर नहीं लानी है। या घर में देखा कि पापा मम्मा वगैरह उसकी तरफ ज्यादा कर रहे हैं, या वो बंदा जो है क्लास में ज्यादा ओवर स्मार्ट है, या देखने में वो ज्यादा अच्छा है, या देखने में थोड़ा मैं मोटा हो, या देखने में बिल्कुल ही पतला हो। ज्यादा मोटा होता है कोई, वो भी परेशान, ज्यादा पतला है कोई, वो भी परेशान, ज्यादा लंबा है कोई, वो भी परेशान, ज्यादा छोटा है कोई, वो भी परेशान। तो इन चीजों में वो ड्रग्स की तरफ जाता है। उसमें अंदर से जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, एक कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं किसी तरह से उस बंदे से पीछे हूं। वो गोरा है, मैं काला हूं, वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, वो मोटा है, मैं पतला हूं। ये सारी चीजें जो है, कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। अगर आपको आईएएस निकालना है, कोई बड़ा एग्जाम निकालना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, वहां पे ये नहीं देखते हैं कि आप गोरे हो, काले हो, बड़े हो, छोटे हो, स्मार्ट हो, बाल कितने खूबसूरत आपके हो, जो वो नहीं देखते हैं। वहां पे पर्सनैलिटी देखते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी। वो कौन सी पर्सनैलिटी हुई? वो पर्सनैलिटी ये नहीं है कि आप सलमान खान की तरह दिखते हो या अभिषेक बच्चन की तरह। पर्सनैलिटी आपके थॉट्स की, आपकी थिंकिंग कैसी है। क्या आप कल को डिसीजन ले पाओगे? अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप प्रसन्नजीत कौर को देखो या बाकी लोगों को देखो। पिछले 1-2 साल पहले हमारे जो टॉपर्स निकले पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, वो क्रिपल थे, हैंडीकैप थे, उन्होंने टॉप किया। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? थिंकिंग, थॉट। आप सोचते क्या हो, आपका थिंकिंग क्या है, आपके थॉट्स कैसे, मैच्योरिटी किस लेवल का है। तो अपने आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी किसी तरह से नहीं लाना है। कलर वलर जो है आजकल नारा है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। कोई भी कलर हो, रेड कलर का हो बंदा, ब्लैक का हो, या जैसा नेचर ने बनाया वैसा बन जाता है बंदा। इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है जैसे भी हो, जहां पे भी, और हार्ड वर्क करना है। तो रिजेक्शन की वजह से फिट इन। अब एक हुआ रिजेक्शन, दूसरा फिट इन, कि भाई ये 20 लोग हैं, ये 20 लोग यार शाम को बैठते हैं, टैग शक लगाते हैं, ये तो एंजॉय करते हैं, और मैं बिल्कुल मैं साइड पे हूं, अकेला हूं, न मेरे साथ किसी की फ्रेंडशिप है, न कुछ है। अब मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करना है, फिट इन होना है। जब तक मैं ड्रिंक नहीं करूंगा तब तक ये मुझे अपने साथ नहीं लेंगे। तो फिट इन के लिए उस सोसाइटी में तो वो उन्हीं की हैबिट्स को अडॉप्ट करता है। तो ऐसा नहीं करना है, वही करना है जो सही है, जो ठीक है। या गुस्से में, या पुअर सेल्फ इमेज है उसको इंप्रूव करने के लिए, या स्ट्रेस में, या क्यूरियोसिटी में मैं कुछ और अच्छा करूंगा, तो वो गलत रास्ते की तरफ जाता है। आगे अब क्रोनिक और हैबिचुअल यूज ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस टू अल्टर स्टेट्स, ये जो हमने पढ़ लिया। चलो आगे जर्नल में। अब जो ड्रग्स है ये किस तरह से हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं और किस तरह इससे एडिक्शन होता है। अल्कोहल इंक्रीजेस द इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ गाबा एंड डिक्रीजेस द एक्साइटेटरी इफेक्ट्स ऑफ ग्लूटामेट। ये गाबा क्या है? आप गूगल खोलो, वहां पे आपको मिलेगा। गाबा, इससे आप में रिक्रिएशनल वो आ जाती है, मतलब आप हैप्पी फील करते हो, इंजॉय करते हो, स्टेट ऑफ यूफोरिया में आते हो, आप एक्साइटेड फील करते हो जब आप अल्कोहल लेते हो। ये सारी चीजें, ये सारी टर्म्स जो है गूगल में, इनको डिटेल में पढ़ना है। जो साइंस स्टूडेंट्स है सबको पता है। या आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप कहोगे शेयर भी आपके साथ करेंगे। तो ये आपने सारा जो है तो देखना है कि इनके क्या इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। हिप्नोटिक
सिडेटिव्स एंड इनहेलेंट्स, ये क्या क्या चीजें ये ड्रग्स में भी हमें मिलती है, इससे हमें क्या मदद मिलता है और किस तरह से फिर एडिक्शन इसकी होती है जब हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। निकोटीन, ओपियाइड्स, कैनिबिनॉइड्स, कोकीन, ये डिफरेंट किस्म के हैं जिनका जो है कुछ यूज किसी क्वांटिटी में हम दवाई में भी लेते हैं, लेकिन जब एक्सेस इसका हम यूज करते हैं तो हम उसका एडिक्शन में आ जाते हैं और हमारे लिए फिर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। ये हुआ ड्रग्स जो नॉर्मल जो अवेलेबल है मार्केट में, और उसको हम गलत यूज भी उसका कर सकते हैं। आगे हमारे ब्रेन को कैसे ये इफेक्ट करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे इफेक्ट करते हैं। आगे ये देखो वार्निंग साइंस, जब आप में से आपको कोई फ्रेंड ऐसा लगे उसकी आईज की ये हालत हो तो आप समझो कि ये जो है कुछ न कुछ गड़बड़ है। ब्लड शॉट, आंखों में खून के जैसे वो निशान, ब्लड के जैसे शॉट्स, वाटरी आइज, पीपल्स लार्जर, पीपल्स होता है वो जो काला वो अंदर का पार्ट होता है ना आई का, वो बड़े हो जाते हैं, किसी के बड़ा बड़ा होता है। आर स्मॉलर देन यूजुअल, इंपेयर्ड विजन, आपको क्लियर दिखता नहीं है। तो ये जिन चीजों में जिसमें ये हो तो आप समझो कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। आगे एपिटाइट, बहुत ज्यादा आपको भूख लगती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, आपका वेट जो है बहुत ज्यादा आप गेन करते हो जैसे अल्कोहल वगैरह से, या बहुत आपका कम हो जाता है जैसे चरस वगैरह, मैरिजुना वगैरह से। कुछ ड्रग्स ऐसे जिससे वेट बिल्कुल खत्म हो जाता है बॉडी का। फिजिकली आप पूरा डिटीरियोरेट हो जाते हो। देखो ये पहले कैसे थे मैडम, बाद में इसकी क्या हालत हो गई। आप देखते होंगे बड़े लोग जो हमारे स्ट्रीट्स वगैरह पे पड़े होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनकी हालत फिर क्या होती है। इंटॉक्सिकेशन, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हो, एडिक्टेड हो जाते हो। आगे और इसके कुछ जो साइंस हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है किसी न किसी तरह का ड्रग का एडिक्ट है। पसीना बहुत आता है आपको स्ट्रेस में, जब आपको जरूरत होती है, स्वेटिंग, वोमिटिंग, आप वो खा जाओगे, आप अपने स्किल को काटोगे, लगाओगे, आप सुसाइड करोगे। तो आप कहां देखोगे कि भाई ये जो है नया सिरिंज है कि पुराना है कि नहीं है। जो भी आपको मिलेगा गली में कहीं पे भी आप उठाओगे, जल्दी जल्दी पानी में लगाओगे, पानी डाल के कर पाएगा। उसको चोरियां करनी है तो अपने घर में चोरी करेगा, बाहर समाज में चोरी करेगा। तो ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है, इसको स्टडी भी करना है। एंगेजिंग इन सिक्रेटिव और सस्पिशियस बिहेवियर्स, फिर वो अपनी जगह पे अजीब अजीब चीजें करता है, हरकतें करता है, उसका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है, फेवरेट हैंगआउट्स और हॉबीज वगैरह चेंज होती है। क्योंकि जब वो ड्रग एडिक्ट बनता है फिर वो बाकी फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलेगा, उसका फ्रेंड सर्कल भी चेंज होगा, बिहेवियर भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, रहना उठना बैठना खाना वाना सारा कुछ चेंज होगा। और लगातार वो बंदा जो है लड़ता है, एक्सीडेंट्स, इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसको चाहिए ना वो चीज। और दूसरी तरफ से वो देखता है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, वो है, ये है, उसको वो भी एंजाइटी है, फिर यहां से उसको ये चाहिए, और सबको कहता है कि मुझे यार अकेला छोड़ो, आस्क टू बी लेफ्ट अलोन अलाइव। आगे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। और फिर करता क्या है वो, क्राइम में कैसे आता है वो, रॉबरी, थेफ्ट्स, चोरियों में, फाइटिंग, असॉल्ट्स, लोगों को मारता है, जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस करता है, बहन को मारा, भाई को मारा, फादर को मारा, मदर को मारा, बीवी को मारा, हस्बैंड को मारा, रेप, प्रोस्टिट्यूशन, सुसाइड्स, होमिसाइड्स, एक्सीडेंट्स, मर्डर करता है, होमिसाइड्स वगैरह। हाउ मिथ्स अबाउट ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन, ओवरकमिंग एडिक्शन, विल पावर। देखो जो एडिक्शन है उसको ओवरकम किया जा सकता है अगर विल पावर आप में हो। तो ये जो है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपने बोलना है। डिजीज है, कुछ भी नहीं कहा, कर सकते हैं। हिट रॉक बॉटम बिफोर गेटिंग बेटर, कांट फोर्स ट्रीटमेंट, सीक हेल्प, ट्रीटमेंट डिडंट वर्क बिफोर, वे अपॉइंट ट्राइंग अगेन।
अगर है कहीं पे भी आप हो, अपने पेरेंट्स के साथ बोलो, फ्रेंड्स के साथ बोलो, टीचर्स के साथ बोलो, तो इलाज वाउट इसमें है। गोल्स, अवेयरनेस और शेयर, ये चीजें सबको शेयर करनी है, और ये आपका सर्कल है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। ये आगे, बी इन्वॉल्व इन ओपन विद योर फैमिली। कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी फैमिली के साथ कहो, क्योंकि अभी आपका मेंटल स्टेज ऐसा है जहां पे आपको गाइडेंस चाहिए। अगर आप में डर है, अगर आप में फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो अंदर लेके मरो मत, सड़ो मत अंदर से, तो अपने पेरेंट्स के साथ बोलो। ये नेचुरल चीज है। आपको पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई क्या है, वो अंदर ले लेके नहीं मरना है, और वो अगर आप अंदर ले लेके मरोगे फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना, अगर आप में जो है, मैंने सारी चीजें आपको बताई, कलर, हाइट, साइज, ये इवन मार्क्स ज्यादा लेना कम लेना, ये चीजें आज के जमाने में मैटर नहीं करती है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेते हो, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्या फायदा है? सिविल सर्विसेज नहीं निकाल पाते, क्या फायदा है? कल को आप प्रोफेसर नहीं बन पाते, क्या फायदा है? अगर आप कॉलेज में नहीं जा पाते, क्या फायदा है? पढ़ाई का क्या फायदा है अगर आप अपने आप को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते? तो सब कुछ जो है, आईएएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है, वी हैव ऑलरेडी सरपास्ड चाइना, एंड टुडे वी आर एट नंबर 1 एज फार एज आवर पॉपुलेशन फिगर्स आर कंसर्न, है ना? तो आप कहोगे कि सभी लोग टॉप पे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू बी हैप्पी वेयर यू आर। थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल वो भी देखना है। लाइफ में बहुत कुछ है, खाली ये चीजें नहीं है। अपना बेस्ट दो जिसमें आप चाहते हो, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो मरना नहीं, उसके पीछे मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा इंफॉर्मेशन। देयर आर नियरली 10 लाख ड्रग एडिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। 10 लाख, ये आप थोड़ा अंदाजा लगाओ। 10 लाख लोग जो है वो एडिक्शन में, ड्रग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। As per National Survey on Extent and Patterns of Substance Use in India, conducted by the Ministry of Social Justice and Empowerment through National Drugs Dependence Treatment Center and DDTC of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, एम्स के अंदर ये हुआ सर्वे, जिसमें ये देखा गया 1,08,000, सुनो भाई, 1,08,000 males and 36,000 females were found using cannabis in Jammu and Kashmir. 5,34,000 males and 8,000 females were found in the drug net of opioids, and 1,60,000 males and 8,000 females were found using sedatives of different kinds. Likewise, 1,27,000 males and 7,000 females were noticed using inhalants. Inhalants जो मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट टाइप के। तो ये सारी फिगर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज है, खाली जिसको लाल आंख देखोगे उसके पीछे नहीं पड़ना, उसमें कुछ टाइम लगाना है, उसके पीछे रहना है, देखना है ये क्या करता है। अगर आप देखोगे कि क्लास बंक करता है, गेट पे बाहर जाता है, ठीक है, कहीं साइड से उसके पास फ्रेंड्स आते हैं, रास्ते में किसी के पास जाता है, कोई रास्ते में उसको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि रास्ते में कोई फ्रेंड में है जो उसको इंटरप्रेट कुछ ना कुछ करता है। अगर उसको वो चीज मिलेगी नहीं, बीच बीच में क्लास बंक करता है, वो मिलेगी नहीं, वो खुद को मारेगा या किसी का मर्डर कर देगा, ये 100% है। क्योंकि अगर वो लेगा नहीं ड्रग, वो खुद को खुद मरेगा, उसको फिक्स करेंगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। To help him to get rid of his addiction. That I will separate awareness against drugs in my personal capacity. That I will be honest and open with my parents and friends about my feelings and problems. Follow
that I will follow all rules and laws established by government community regarding the use of drugs. regarding the use of drugs. That I will work That I will work to eradicate to eradicate this drug addiction this drug addiction from my region and state. And state. Thank you. थोड़ा देख साइड। आपने देखा कि आज जो है ड्रग्स अवेयरनेस का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजौरी की तरफ से डिग्री कॉलेज नौशहरा में हमने ऑर्गेनाइज किया। आपको पता होगा कि ड्रग्स जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के हमारे देश के सामने, हमारे स्टेट के सामने और हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सामने जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। तो इसके लिए लगातार जो हमारे ड्रग पेडलर्स वगैरह है, हर दिन तकरीबन डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ड्रग पेडलर्स वगैरह को हम पकड़ रहे हैं। हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो सब डिवीज़न नौशहरा है, यहाँ पे भी हमने पिछले 2-3 महीनों में 6-7 FIR जिसमें लॉन्च की और बहुत सारे लोग अभी सलाखों के पीछे हैं। तो एक तरफ से जो ड्रग पेडलर्स है उनके खिलाफ हमारी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, वो सख्ती के साथ हम उनके अगेंस्ट वो जो है काम चल रहा है। दूसरी तरफ से हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम यूथ को जो इस देश का, हमारे स्टेट का, हमारे समाज का फ्यूचर है, उनको हम अवेयर करें कि वो जो हैं इस चीज़ से दूर रहें, वो अवेयर रहें, चौकन्ने रहें कि वो कहीं इस जाल में न फंस जाएं। तो इसी सिलसिले में हम जो है आज डिग्री कॉलेज नौशहरा में हमने ड्रग अवेयरनेस का यहाँ पे प्रोग्राम किया। आने वाले दिनों में हम और करेंगे, बाकी स्कूल कॉलेजेस में भी करेंगे। तो हमारा जो एम और ऑब्जेक्टिव है कि वो यूथ और जो है टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स और पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चों के हैं, वो अवेयर रहें ड्रग्स के बारे में और अपने बच्चों को हर किसी के ड्रग एडिक्शन से बचाएं, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे देश का, हमारी स्टेट का फ्यूचर जो है वो उज्जवल हो और हम तरक्की कर पाए। क्योंकि हमारा जो यूथ है वो पूरे दुनिया में जो यूथ की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ऑलरेडी हम पॉपुलेशन में भी चाइना से आगे गए हैं। तो हमारा जो देश तरक्की करे, हमारा समाज तरक्की करे, हमारा यूथ जो है मेंटली फिजिकली फिट हो और ड्रग से बचे। तो इस सिलसिले में हमारे आगे जो है वो अवेयरनेस की कार्रवाई भी होगी और ड्रग जो पेडलर्स है उनको सलाखों के पीछे जो है वो बंद किया जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। शाली है, मैं डिग्री कॉलेज नौशहरा की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे कॉलेज में पुलिस की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप करवाया गया है। यहाँ पे सेमिनार करवाया गया है। वहाँ पे पुलिस ने मतलब जो उनके हेड थे उन्होंने बताया कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बुरी चीज़ है, जैसे हम सभी जानते हैं। और उन्होंने बड़ी सारी प्रिवेंशंस, बड़े सारे उसके कॉजेज और बड़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे हमने अपने आसपास के लोगों को जाके अवेयर करना है कि ड्रग्स नहीं कंज्यूम करना है। और मेरी एडवाइस यही है कि मतलब अगर कोई भी हमें पर्सनल प्रॉब्लम है तो हमें अपनी फैमिली से शेयर करनी चाहिए, ना कि ड्रग्स की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू।